We have Rehana Gujar from Jagadri as well as another courts. She is also pursuing in High Court of Chandigarh. So I welcome you here. Another Rita Singh, the brilliant and legal mind, and she is very cooperative, always be dedicated to the community service. So I also welcome you. I am greatly honored. She is also pursuing or she is doing a practice in the Dehradun court. Secondly, we have the enthusiast, young and a very brilliant mind, Lalit Bhati. Lalit Bhati, stand up please. Yes, Lalit Bhati is very brilliant or always, हमारे जहाँ भी conference he is always with us. So I welcome you also. Pundhir Sahab, welcome you from Dehradun court. हमारे साथ हैं, next is Ranveer Singh, एडवोकेट रविंदर सिंह जी, और ये दूसरी इनकी एक पहचान ये भी है कि ही इज द हस्बैंड ऑफ रीटा सिंह. द बोथ आर द, दिस इज द कपल हियर. वी आर वेलकम यू बोथ ऑफ यू. आवर नेक्स्ट तरुण सिंगला जी, एडवोकेट फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. आवर नेक्स्ट इज GS Thind साहब. He is also from Patiala and practicing and a brilliant legal mind from the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh. Our next is Raj Singh ji from Delhi. Next is our young and just like my son, you can say our son, he is very young to us. And his father and I think 4 to 5 persons from the same family, they are pursuing in the High Court of Punjab and Haryana High Court. Sri Gagandeep Singh Chaudhary Sahab. Sir, आपका नाम? विकास अवाना जी. आपका सर? From? Meerut. आप अवाना साहब दिल्ली से? We are also highly delighted to welcome Mr. Avana from Delhi and Mr. Yashpal ji from Meerut. So quorum is full. We are expecting about 250 persons. So we are already, we have here. Some people are on the way, so not a problem. They are coming here. We are expecting soon they will arrive here. Secondly, our conference will start first. We will go for the legal, and then we will come after lunch to the Vijay Singh Pathik ji on the history, Vijay Singh Pathik's revolutionary, whatever the contribution to the society, what are their contribution to the nation. So we have to be Professor Tanvi Bhati and Yashveer ji and other. They will definitely enhance our knowledge about the revolutionary Vijay Singh Pathik. Abhi aayega. Yes, Vinod Chaudhary, yes. Advocate Vinod Chaudhary, he is very respected and very, can say, dignity of our community. And he is practicing our, that is the Dehradun bar for the long time, senior advocate. So I welcome you also, sir. Sorry. One of the advocate is Jafar Iqbal, Advocate Jafar Iqbal. Please stand up and give a ground applause because he come. Earlier, he visited to us and attended the Chandigarh conference also. And now, yesterday night, he came from the J&K. And today, he reached here. So I welcome him. He is a very dedicated, very brilliant, and very outstanding personality. Next is our Mahmood Sahab. So Mahmood Rizvi ji, I welcome you. He is also from the same J&K High Court. And we have 3 persons now. First, in the earlier meeting, we have only J&K says Jafar Iqbal, he was there. Now we have Rizvi Saab and another very good prominent personality of our society and our community, that is to be Inqlabi Saab. Very good. He had formerly presented to several, you can say, departments and even worked as a Delhi also as a director and a former director also. So I would like to all of you invite here. Please give some time because one of our prominent IPS Sahab Ram Mohan ji from Hyderabad, he is expert for cyber forensic and he was earlier as a SP worked for the Andhra Pradesh. So he is going to join our conference on the virtually. We are trying to connect. Please give some more time. Please, thank you. Just if you want, you can continue with your introductions. So I will pass the mic. Please, one by one, you can introduce yourself. Please, sir. Brief, थोड़ा advocates के अभी जैसे आपने थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट का आप अपना introduction करें, please. मैं देहरादून से विनोद चौधरी एडवोकेट हूँ सर. यहाँ सर बहुत अच्छा लगा सर. ऐसा होना चाहिए.
इनसे हम लोगों की यूनिटी रहेगी और सबके एक दूसरे से मतलब लिंक रहेंगे। ये बहुत अच्छा काम है सर। जुड़ गए मेरा नाम ज़फ़र इकबाल, मैं बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ और जम्मू JNK हाई कोर्ट जम्मू विंग में प्रैक्टिस करते हैं। मेरी फ़र्स्ट मीटिंग चंडीगढ़ में मैंने अटेंड की थी लास्ट मंथ मई में, तो बड़ा अच्छा लगा। इट वाज अ गुड स्टेप बाय अखिल भारतीय वीर गुर्जर परिषद, एंड इट इज़ नीड ऑफ द टाइम कि हम लोग यूनाइट हों, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है और हम सबको मिलकर इसको सक्सेस बनाना चाहिए। Bismillahirrahmanirrahim. Present here, honorable judges, learned advocates from different states. I, Advocate Mahmood Rizvi, from Jammu and Kashmir, practicing lawyer at Jammu and Kashmir High Court. Besides this, I used to work for the weaker section in upliftment of the society. Moreover, I also used to run an educational trust by the name Jamia Rizvia, in which the poor, orphan, destitute, and helpless children are getting free education along with meal and other hostel facilities as well. Sir, I am grateful that being a part of this conference, it is the need of the hour that we should arrange such type of conferences at every corner across the country and discuss the issues relating to the problems which are being faced by our Gujars at different places. And discuss the issues relating to their problems and how we have to solve them. Since I am from Jammu and Kashmir, the people of Jammu and Kashmir, the Gujars belong to nomadic tribes. They used to migrate in hilly areas from one place to another in order to search for the fodder for their livestock and also earn their livelihood. History reveals that Gujars always remain loyal towards their nation. In the end, I just want to say from this stage that there are all legal luminaries, experts here, that for the protection of the constitution of our country, we should unite and work together. That constitution provided to us by our Dr. B.R. Ambedkar Sahib. It is our duty and responsibility. In the end, thanks a lot. Khuda Hafiz. Hi, very good morning. I actually do not belong to this field, but since I'm here, so I'm very privileged to be among such amazing advocates. My name is Lakshay and I'm a young entrepreneur. I own SR Constructions and I'm from Chandigarh. I'm here to increase and raise the spirits of my father, to support him here. So it's a privilege. Thank you so much for having us here. Thank you. नमस्कार आप सबको। मैं राजवीर राज, एक इंजीनियर, मेरा व्यवसाय है अपना, और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शायर हूँ। आपका प्रतिनिधित्व करता हूँ गुजर समाज से। चंडीगढ़ में रहता हूँ और सबसे बड़ी पहचान ये है कि भाई भरत जी जो है मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल हमारे घर आसपास हैं। तो मेरा आपके फील्ड से तो ताल्लुकात नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कानून के द्वारा आप समाज को बुराइयों से बचाते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, उनकी संवेदनाएं और वेदनाएं सुनते हैं, उसी तरह एक शायरी के जरिए मैं भी ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं और पहुंचा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। नमस्कार सभी को। मेरा नाम तन्वी भाटी है। पेशे से मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा महेंद्रगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ। कहाँ की हूँ? गोत मेरा भाटी है, तो भाटी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाला जो रीजन है, दनकौर के पास मेरा जो पेट्री लीनियज है, वहाँ हमारा गांव है बुलंदखेड़ा। मेरे ग्रैंडफादर वहाँ से है। अब जब कहाँ से की बात आती है तो मदर को नहीं छोड़ सकते। तो मदर मेरी बोकन है, गुड़गांवा से हैं। अब मैं कहाँ रहती हूँ? घर मेरा दिल्ली में है, काम मैं महेंद्रगढ़ में करती हूँ, तो एक घर महेंद्रगढ़ में भी है
और जैसे समाज में आना जाना चलता रहता है, तो मुझे लगता है जिन लोगों से मैं मिलती हूँ, जो लोग मुझसे मिलते हैं, तो वहाँ भी मेरे घर हो जाते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है ये बताना मैं कहाँ से हूँ। आप कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर, आप कह सकते हैं मैं कहूँगी भारत से हूँ, और यहीं रहते हैं। आप सबके साथ जहाँ भी मिलना होता है वहीं के हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। अक्सर हम क्योंकि एकेडेमिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो प्रोफेसर से मिलना जुलना हो पाता है, रिसर्चर से मिलना जुलना हो पाता है। लॉयर्स की एक कॉन्फ्रेंस में मैं पहली बार आई हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मुझे लगता है मिलेगा मुझे, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा कम्युनिटी को लेकर के, कहाँ लोग कैसे कर रहे हैं और किस तरीके की परेशानियों से जूझ कर आगे बढ़ते हैं। और आशा है हमारा आज का दिन बहुत फ्रूटफुल जाएगा। थैंक यू सो मच। सभी को सादर जय पथिक। मेरा नाम यशवीर भाटी है, और बिटिया तन्वी भाटी जहाँ से कह रही थी, हमारे इस एरिया को भटनेर बोला जाता है, भाटियों की नेर। तो मैं भटनेर से हूँ, मेरा गांव वहीं पे है, दादरी तहसील में लोहारली। और मैं पिछले 37 वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सेवा दे रहा हूँ एज ए एम्प्लॉय। 12 वर्ष में एम्प्लॉयज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा। और ये तो इसको मैं परिचय नहीं मानता, ये तो दाल दलिया है। हम अपना प्रोफेशन में है, नौकरी कर रहे हैं, हमारे घर परिवार सब कुछ चल रहा है, लेकिन वास्तविक जो परिचय है वो ये है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, क्या लौटा रहे हैं। मैं वो मैथिली शरण की गुप्त की पंक्ति है कि मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरे, वो तो पशु प्रवृत्ति है जो आप ही अपचारे। तो 11वीं क्लास में मेरे पास ये पंक्ति आई, तो मैंने उसी समय से समाज को समर्पित किया, और 1994 से निरंतर पूरे भारतवर्ष में कार्यरत हूँ, सेवा दे रहा हूँ, और 1.5 साल बाद सेवानिवृत्त होऊंगा। मेरा 24 घंटे केवल और केवल सोसाइटी के लिए है, और टोटल फ्रंट्स पे काम करता हूँ। एक सोच है, और विजय सिंह पथिक पर हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि उनको जनाने के लिए हमें मशक्क़त करनी पड़ रही है। यदि एक पहली पीढ़ी वाले जाग गए होते तो आज पथिक जी का मुकाम, पथिक जी ऑलरेडी मुकाम पर हैं, हमेशा रहे, तो वहाँ अक्षर से वहाँ नामित हो जाते। 7 पुस्तकें हम लोग, हमारी टीम है विजय सिंह पथिक शोध संस्थान, राजस्थान सरकार से भी, उत्तर प्रदेश सरकार से भी, और पथिक जी के द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उन पर भी हमारा काम चल रहा है। अभी एक पुस्तक इसी कॉन्फ्रेंस में होना था। जी जी जी। तो मेरा सिर्फ ये परिचय है कि मैं समाज के लिए कितना कर पा रहा हूँ, इससे अलावा मैं एक साइड मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एडवोकेट अभिषेक सिंह चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ, और हम 3 भाई बहन हैं, तीनों ही वकील हैं। इनफैक्ट हमारी फैमिली में हम हंसते हैं कि जिसने भी कॉलेज में कदम रखा है वो लॉ कॉलेज में ही रखा है। इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हम करीब 20 के करीब हम हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। 2011 से मैं हाई कोर्ट में हूँ, उससे पहले मैं लंदन से मास्टर्स करके आया, और ये सेकंड कॉन्फ्रेंस है, बल्कि पहली जो चंडीगढ़ में थी वो मैं अटेंड नहीं कर पाया, वो मेरे घर के पास थी, पर उस मौका नहीं मिला। तो आज मैं यहाँ सुनने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा कि क्या यहाँ पर आज का रहता है हमारा, और आगे मैं क्या कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। मैं नेक्स्ट टाइम से रेगुलर भी होऊंगा। थैंक यू। सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद, नंदन और अभिनंदन करता हूं, और सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मेरा गांव ग्रेटर नोएडा में एक छोटा सा टापू की तरह है, परी चौक के पास सफ़ीपुर गांव है, तहसील सदर है, वहां का मैं रहने वाला हूं। मेरा नाम देवेंद्र टाइगर एडवोकेट है। वैसे मेरा गोत्र जो है वो तोंगड़ है, तोंगड़ से टाइगर हो गया ये। और मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी विद्याराम प्रधान जी बहुत ही सोशल थे, तो मैं भी उनके साथ बहुत ज़्यादा रहा हूँ। मैंने बीएससी दादरी से किया, लॉ एमएमएच कॉलेज से किया, एलएलएम फिर मेरठ कॉलेज मेरठ से किया। मैं किसान परिवार से हूँ। दूसरी बात यह है, मुझे समाज का बहुत शौक़ है। मुझे समाज के जो अच्छे लोग हैं उनसे मिलने का जुलने का बहुत शौक़ है। मैं अपना ज़्यादा समय समाज में देता हूँ। मैं सूरजपुर में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ 2000 से। उससे पहले मैं पटियाला हाउस में था, वहाँ मैं बार एसोसिएशन का 2004 में सचिव भी रहा, 2011 में मैं अध्यक्ष भी रहा।
उसके बाद ग्रेटर नोएडा जो शहर है उसमें जितनी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसके ऊपर एक फेडरेशन है, उसका मैं 15 साल से लगातार निर्विरोध चेयरमैन हूँ। और वर्तमान में दादरी में एक मिहिर भोज नाम से एक संस्था है जिसकी 6-7 है, मिहिर भोज इंटर कॉलेज, मिहिर भोज बालिका डिग्री, मिहिर भोज बालिका इंटर कॉलेज, मिहिर भोज पीजी कॉलेज, उनका मैं वर्तमान में अध्यक्ष भी हूँ। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। और मैं ये सोचता हूँ समाज के लिए दुख सुख में जहाँ भी आपको मेरी जरूरत पड़े मैं हमेशा समाज के साथ खड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और जोड़ दूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। अनिल जी आपका नंबर है प्लीज़। आज के जो मोमेंटोज हैं दैट इज़ उसकी जो जितनी भी खर्चा आया है दैट इज़ गिवन बाय द आवर एडवोकेट देवेंद्र टाइगर जी। तो आई एम थैंकफुल फॉर द एबीवी गैप कि आप लोग जैसे समाज के लिए काम करते हैं और आप खुले दिल से समाज के लिए ऐसा दान करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नाथूलाल गुर्जर, जयपुर से हूँ। वैसे मेरे पूरी पढ़ाई लिखाई ग्रामीण क्षेत्र से हुई और फिर उसके बाद में राजधानी जयपुर आ गया। वहाँ गुर्जर हॉस्टल है, वहाँ पूरा युवा अवस्था में ही जो 20 साल तक करीब समाज सेवा में समर्पित रहा। वहीं रहते हुए हॉस्टल में रहते हुए डिग्रियां सर के मार्गदर्शन LLB, LLM, PhD, DLL, DCL, DTL, DHE, DGNR, MJMC, MAGP। तो कहने का मतलब आप जो लॉ है, जो लॉ को पढ़ाना, लॉ फैकल्टी से जुड़ा रहा, करीब 35 साल हो गए। अभी से लॉ डिपार्टमेंट PG है, फैकल्टी डेवलपमेंट है और अन्य कार्यक्रम है। इसके अलावा सर के साथ जो सर भी फैकल्टी में थे, हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में सौभाग्य मिला और तभी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में हाई कोर्ट में वकालत भी जो शुरू की है। अब रिटायरमेंट की वो हो गई करीब 63 ईयर्स। तो अब समाज सेवा में और आगे जो अधिवक्ता बंधु है, मुझे आश्चर्य होता है कि क्योंकि शुभारंभ इन्होंने जो जयपुर में किया, लेकिन जयपुर में कुछ ऐसी थी कि थोड़ी सी कम्युनिकेशन का अभाव था और मैं उस समय मेरी खास सिस्टर एक्सपायर हो गई थी तो मैं गांव में था। तो वो एक अचानक जब मैं आया था अटेंड करने, तो केवल उस प्रोग्राम को अटेंड करने आया था। तो मुझे आज भी थोड़ा दुख और ग्लानि है। सर को मालूम है करीब राजस्थान में 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और करीब 500 के करीब अभी यूनिवर्सिटी और सब कैंपस में पढ़ रहे हैं, वो सारे संपर्क में हैं। तो अब दोबारा जब भी जो मौका मिलेगा उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमें तो आज जो अधिवक्ता जो साथी है, इनका मेन मिशन यही था कि कई हमारे समाज के अधिवक्ता आते हैं लेकिन उनको जो कानूनी बारीकी जो टिप्स है, पहलू हैं, उनके बारे में नहीं होता। क्योंकि आजकल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट की छोड़ दीजिए आप, बाकी सब में पासबुक और सीरीज कंसेप्ट चल रहा है। हर जगह हर मार्केट में यही चल रहा है और फिर घर वालों के आपको दाना बोझ बनते हैं सभी सारे पढ़कर, और फिर कि ये कोचिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर ज़रूरत क्या है। हम पुराने जो जितने भी अधिवक्ता हैं वो पूरी किताब हार्ड, आज भी मैं ये मानता हूँ आपका डिजिटल ईरा आ गया, लेकिन अब आर्टिकल आप देखोगे वालों कोई भी लॉ में कोई भी एनी सब्जेक्ट, तो कुछ ज़रूरी है क्या कौन सा रिलायबल है, कौन सा अच्छा है, ये इसमें आपको दाना पढ़ते पढ़ते उसमें कंफ्यूज हो जाता है और उसमें जब दूसरे को जानकारी देता है तो आधी अधूरी और चौथाई रह जाती है। तो इसलिए क्या है हार्ड जो लाइब्रेरी है, आज हमारे समाज में एक से बढ़कर एक मंदिर बन रहे हैं, धर्मशालाएं बन रही हैं, लेकिन हम तो आजकल ये शुरुआत गांव में अभी जीकेप सर को मालूम है, जीकेप में अभी पूरे राजस्थान में कर्मचारी हैं, एक पियोन से लेके ऊपर तक का अधिकारी जुड़ा हुआ है और वहाँ करीब 8 या 9 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए और कुछ ने मान लीजिए 4-5 करोड़ वैसे हो गए। तो यहाँ एक प्लान है, वहाँ जो बिल्डिंग बन रही है 10 मंजिल की, और उसका आपका जो ये होटल है वैसे ही अच्छा जो सपना सभी का है कि जयपुर में राजधानी का एक पूरा हो। और ये कंसेप्ट है मंदिर की बजाय हमारे ये भी इलाके में ये कर दिया कि कोई भी अगर डेथ होती है, हाँ, तो उनमें एक डेथ होने के समय एक कमरा उनको दे दिया जाता है
टोंक और बूंदी उसके उदाहरण है। आज करीब 250 कमरे हैं और उनमें से करीब 5 या 6 हज़ार कर्मचारी जो है वहाँ से नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। और ये कंसेप्ट मंदिर बनाए कहीं भी ले, लेकिन लाइब्रेरी का जो आजकल सुविधा होती है वो ज़रूर हो, जिसके कारण हमारा कोई भी घर में ऐसा माहौल नहीं मिलता है और पढ़ने के लिए वो उपयुक्त है। तो बाकी तो आप लोगों के जो सार गर्भित जो विचार है उपयोगी उनको पाएंगे। धन्यवाद। वेरी थैंक्स। मित्रों, मैं एडवोकेट रणवीर सिंह गुर्जर फ्रॉम मध्य प्रदेश ग्वालियर एट द बेंच हाई कोर्ट, और मैंने तीनों कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं और आशा करता हूं कि आगे भविष्य में भी ऐसा कारवा चलता रहेगा। थैंक्स। आर्य इनकलाबी जम्मू एंड कश्मीर से। मैंने अपना कैरियर की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से की, फिर जम्मू कश्मीर में मुझे मौका मिला, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रहा, डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई रहा, डिप्टी कमिश्नर रामबन रहा, और लास्ट में 2019 में स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से रिटायर हुआ। और मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हूँ, और सर्विस से पहले मैं एक अखबार एडिट करता था उर्दू में। तो इसी के साथ आप सबका शुक्रिया। मेरा नाम बलबीर सिंह है, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ्रॉम हरियाणा। 4 साल मैंने प्रैक्टिस की है, उसके बाद सर्विस की है। रिटायरमेंट के बाद भी मैं चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी में स्टेट कंज्यूमर कमीशन में रहा हूँ। अब पंचकुला में सेटल हूँ। I'm Justice Virendra Singh Sardana. I practice at High Court, bench at Jaipur, Rajasthan High Court, for about 25 years. Then I was at bench as judge of the Rajasthan High Court. Then I was chairman, Real Estate Appellate Tribunal for Rajasthan, which office I had recently demoted. I'm also helping and cooperating with all the community organizations. Of course, I don't become their part. अभी जो मिस्टर नाथुलाल बता रहे थे कि हमारा एक संगठन है राजस्थान में, जी कैप, गुर्जर अधिकारी कर्मचारी परिषद। तो उन्होंने एक उद्देश्य रखा है कि 1 rupee डेली कंट्रीब्यूशन बाय एवरी ऑफिसर और एम्प्लॉई टू एजुकेशन फॉर हिज एंटायर सर्विस पीरियड. It may be once in one go or it may be monthly. उससे उस संस्थान के पास कम से कम 9-10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया. अब प्रॉब्लम यह है कि अब उनमें 2 डिवीज़न हो गए. अब कोई मंत्री के लिए लड़ रहा है, कोई अध्यक्ष के लिए लड़ रहा है. वो पैसा यूं ही पड़ा हुआ है. जैसे बच्चों का भला होना चाहिए, समाज का भला होना चाहिए, वहाँ झगड़ा हो रहा है. मुझे बुलाया गया कि आप इसमें आ जाइए, मैंने मना कर दिया. यहाँ तक कि उनमें लिटिगेशन हो गया. मैंने कहा आप पहले विड्रॉ करें और दोनों आके लिख के दें, देन आई विल एंटर, अदरवाइज आई विल नॉट एंटर. क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा के लिए, समाज के भले के लिए जो आदमी डेली वेजेस पे काम करता है वो भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार होता है. वो जज्बा है इस कौम में. लेकिन दुख की बात यह है कि जो कर्णधार बनते हैं वो सब एक एमएलए या एमपी के टिकट के लिए लाइन में लग जाते हैं और वो उस संस्था का सत्यानाश कर देते हैं. एक हमने खूब पत्थरों के, मिट्टी और सीमेंट के भवन इकट्ठे कर दिए हैं और जितने भी भवन मैंने ज़्यादातर देखे हैं वो सब राजनीति के अड्डे बने हुए हैं. वहाँ पर एजुकेशन के नाम पे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के नाम पे वो बनते हैं, लेकिन वहाँ पर काम कुछ अलग ही होता है. इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप किसी भी ऐसी संस्था से जुड़ें तो कोशिश करिए कि ऐसे संस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका कंट्रोल है, वो शिक्षाविदों के हाथ में हो, एकेडमिशियंस के हाथ में हो, ताकि वो वहाँ बच्चों का वास्तव में कुछ भलाई कर सकें. आगे बढ़ने के लिए आप सब ने किया है. देखिए, जब जो चमकता है, लेकिन उस चमक से पहले उसको कितनी रगड़ खानी पड़ती है, ये वो वस्तु ही जानती है या वो इंसान जानता है. आप हर एक व्यक्ति की चमक देख लेते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे वो अंधेरे पल नहीं दिखते आपको जो उसने मेहनत में गुजारे हैं, तब जाके वो चमक मिलती है.
अगर आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक ही उसका मूल मंत्र है, पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। धन्यवाद। मेरा नाम GS अवाना है और मैं रिटायर्ड IPS हूँ, अगमू कैडर का। 2018 में मैं दिल्ली से रिटायर हुआ और शिक्षा दीक्षा, और गांव मेरा हरौला है, नोएडा का पहला गांव है। शिक्षा दीक्षा मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद MBA भी वहाँ से किया, MCA किया और 4-5 और डिग्रियाँ की। मुझे राष्ट्रपति मेडल मिला हुआ है पुलिस का, और इंग्लैंड का भी एक मेरे पास प्रिंस माइकल मेडल है जो वहाँ की क्वीन ने मुझे दिया। इसके अलावा मैं जो है कई काम करता हूँ, उसमें जो सबसे अच्छा काम मुझे लगा, जिसमें मैंने 18 वर्ष लगाए, वो मैंने संस्कृत से ट्रांसलेशन की इंग्लिश में वेदों की, चारों वेदों की मैंने ट्रांसलेशन की है। और रिटायर होने के बाद मैं लीगल एडवाइज़र दिल्ली मेट्रो रेल रहा। उसके बाद लीगल एडवाइज़र NTA हूँ आज की तारीख में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा एक मेरा लीगल चैनल है GS से पोस्ट। वहाँ मेरा प्रयास रहता है कि बहुत ही सिंपल और सादा वर्ड्स में जो कानून है उसको समझाऊं, जो डिसीजंस हुए हैं जो उनको समझाऊं, और काफ़ी अच्छा उसका मैं जवाब भी देता हूं। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ में मैं लगा रहता हूं। थैंक यू। प्लीज़ इंट्रोडक्शन ब्रीफ में है, ये थोड़ा सा ब्रीफ में अपना कराते हैं प्लीज़। मैं एडवोकेट नीतू सिंह हूँ। बेसिकली मैं मेरठ से रहने वाली हूँ और शादी मेरी आगरा में हुई है। मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे इरिगेशन में, और हम लोग मैक्सिमम टाइम हमारा जो लाइफ का पीरियड है वो हमारा रुड़की में ही गुजरा है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा के चलते मैंने रुड़की से अपने को शिफ्ट नहीं किया। उसी बीच वहाँ पर वैकेंसी निकली थी जज फैमिली कोर्ट के लिए, जो एलिजिबल थी लेडीज़ 7 इयर्स की प्रैक्टिस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में करने के बाद, और 35 to 45 इयर्स ऑफ एज के लिए। तो मेरा थ्रू इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ था उत्तराखंड हाई कोर्ट की एडिशनल जज फैमिली कोर्ट रुड़की के लिए, जहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। बहुत अच्छा मेरा वो टेन्योर रहा। मैंने बहुत सेटलमेंट कराए फैमिलीज़ के, और मैक्सिमम सेटलमेंट था रिकॉर्ड मेरा उत्तराखंड में। मैंने 3,500 फैमिलीज़ को सेटल कराया था ड्यूरिंग माई सर्विस पीरियड, जो कि एक अपने में बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी बाद में, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और सिंह साहब सेल्टेक्स में डेपुटेशन पे गए हुए थे, उस समय असिस्टेंट कमिश्नर सेल्टेक्स थे। तो परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं ट्रांसफ़र नहीं ले पाई और मैंने वहीं पे अपनी जॉब को छोड़ा 2007 में। 2008 में मेरे दोनों बच्चे अच्छे थे पढ़ने में, रुड़की में ही रह रहे थे, और उन दोनों बच्चों को अपनी लाइन मिली। एक बच्चा कोटा चला गया प्रिपरेशंस के लिए इंजीनियरिंग की, और बड़ा बेटा मेरा NIT पौंडीचेरी में चला गया इंजीनियरिंग करने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग से। फिर दोनों बच्चों की शिक्षा दीक्षा में मैं लगी रही, लेकिन उस बीच एहसास हुआ कि कुछ खालीपन है जीवन में। तो मैंने सिंह साहब के सहयोग से उत्तराखंड हाई कोर्ट में जाना शुरू करा। उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट थी 95 से। सुप्रीम कोर्ट मैंने 10 इयर्स किया था, स्टेट ऑफ हरियाणा के गवर्नमेंट पैनल पे भी थी मैं, लेकिन रुड़की ट्रांसफ़र होने के कारण वो मुझे छोड़ना पड़ा था। फिर मैंने अपना स्टार्ट करा कैरियर दोबारा से प्रैक्टिस से इन 2008, और छोटे छोटे केसेस के साथ मैंने नैनीताल जाना शुरू करा, क्योंकि बच्चे दोनों ही बाहर थे। सिंह साहब PhD कर रहे थे IIT से, तो सभी व्यस्त थे अपने अपने, तो मुझे लगा मैं ही खाली हूँ। तो मैंने दोबारा से शुरू किया अपनी प्रैक्टिस को, जो बहुत अच्छे अंजाम तक पहुँचा। और क्रिमिनल में मेरा खास इंटरेस्ट है वैसे, और बाकी फैमिली कोर्ट के मैटर्स तो मुझे मिलते ही थे बीइंग अ फैमिली कोर्ट जज। तो ऐसे करके अच्छा सफ़र चला। इस बीच में और उपलब्धियाँ हुई मेरी कि मेरा बेटा उस इंजीनियरिंग करने के बाद में जॉब में गया, उसके बाद उसने UPSC का एग्ज़ाम दिया,
और वो पहले राज्यसभा में सेलेक्ट हुआ यूपीएससी के थ्रू, लेकिन राज्यसभा की जॉब करते करते ही उसने आईएएस का एग्ज़ाम दिया एंड नाउ राइट नाउ ही इज़ आईएएस इन यूपी कैडर। और वो सीडीओ बलिया है छोटा बेटा, और बड़ा बेटा मेरा सिविल इंजीनियर है। उसको शुरू से ही उसने मास्टर्स किया था यूएसए से स्कॉलरशिप पे, तो उसको विदेश की ही संस्कृति शायद ज़्यादा पसंद आई, तो वहीं वो सेटल हो गया है कनाडा में, और वहाँ पे ग्रीन कार्ड होल्डर है। ही इज़ अ सिटीजन ऑफ कनाडा राइट नाउ, और वहाँ वो बहुत अच्छे एक मेट्रो के ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो दोनों बच्चे सेटल हैं। अब हमारे पास सिवाय समाज की सेवा और देश की सेवा करने के अलावा कोई काम नहीं है। तो आप लोगों को जो भी मेरा सहयोग कभी भी हो, मैं रुड़की रहती हूँ सैटरडे संडे, बाकी वर्किंग डेज में मैं हमेशा नैनीताल होती हूँ। तो आप लोगों को जिस तरह भी मेरे समाज को मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा तैयार हूँ इसके लिए। Good morning, everyone. Myself, Rehana Gujar, from Yamuna Haryana, practicing at District and Session Court Jagadri as a criminal lawyer, and as well as enrolled in High Court Chandigarh also. Time का थोड़ा shortage है, तो I think it's sufficient. Thank you. नमस्कार, रीता सिंह एडवोकेट, मायका सहारनपुर से है, ससुराल हरियाणा है, और मैं 97 से देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मेंबर हूँ। बस सभी को नमस्कार, राम राम। मैं ललित भाटी एडवोकेट, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा जो नेटिव विलेज है वो रामपुर गांव है, और रामपुर गौतम बुद्ध नगर। एंड मैं अभी बेसिकली जो प्रैक्टिस है, और मेरी पूरी फैमिली में दिल्ली में अभी रह रहे हैं, एंड मैं 2017 से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। थैंक यू। मैं आनंद कुमार पुंडीर एडवोकेट, देहरादून में 2003 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बेसिकली लक्सर कुआखेड़ा मेरा गांव है, जो रुड़की उत्तराखंड में ही पड़ता है, और फैमिली मेरी सारी जो है फौजी फैमिली रही है। फादर और दोनों ब्रदर मेरे फौज में रहे हैं, और रविंदर सिंह एडवोकेट मेरे सीनियर एडवोकेट हैं, जिनके अंदर में 10 साल प्रैक्टिस की है। और मैं भारत भूषण सर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया आप लोगों से मिलने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह, गांव मेरा है घोड़ो पिपली है, हरियाणा और यूपी का बॉर्डर पे गांव पड़ता है। आधा गांव हरियाणा में, आधा यूपी में है। और फादर ब्लॉक ऑफिस में रहे, तो उत्तराखंड में ही हम पैदा हुए, बेसिकली उत्तराखंडी हैं, और जन्म भी मेरा उत्तराखंड का ही है। वैसे मैं देहरादून में 1992 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आखिर में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मैं समझता हूँ भारत भूषण जी ने पत्थर उछाल दिया है, और हमें जो है ललित भाटी जी जैसे यंग एडवोकेट है, ये डायनामाइट पैदा करने हैं जो समाज के हित में ब्लास्ट करे और समाज को तरक्की पे ले जाए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम तरुण सिंगल है। मैं बेसिकली प्रैक्टिस तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ही करता हूँ, और मैं पीछे से शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र से हूँ। Good morning everyone. I am गुरजिंदर सिंह थिन, एडवोकेट फ्रॉम पटियाला, और मेरी प्रैक्टिस चंडीगढ़ हाई कोर्ट में है। मैंने जयपुर वाली कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, चंडीगढ़ वाली कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करी, ये भी अटेंड कर रहा हूँ भारत भूषण की कृपा से। और उस कॉन्फ्रेंस में सर जस्टिस साहब के विचार सुने, जज साहब के विचार सुने, अवाना साहब के, बहुत कुछ अचीव किया। और मैं चाहता हूँ कि सभी एडवोकेट भाई इस कोशिश करें कि ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, ताकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आपका एक्सपोजर होता है। धन्यवाद। राज सिंह जी, सराय का लेखा, दिल्ली से जी। Good morning to everyone. Myself Gagan Gujjar, advocate from Punjab and Haryana High Court, presently living at Zirakpur near to Chandigarh, basically from Kurukshetra, Haryana. Thank you so much. नमस्कार, मेरा नाम विकास सवाना है। मैं हरौला गांव नोएडा का रहने वाला हूं। प्रैक्टिस मैं साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करता हूं, और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। ये मेरी सेकंड मीटिंग है। पहली मैंने जयपुर में अटेंड करी थी अपने सीनियर के साथ, श्री राजपाल कासना जी के साथ, और आज मैं यहाँ अकेला आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का। सभी को नमस्कार। मैं यशपाल सिंह नागर मेरठ से हूँ, और मैं वकालत में तो ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, लेकिन मैं पुलिस से, विजिलेंस, सीबीआई से रिटायर हूँ। और ये भारत भूषण जी का बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि अधिवक्ता वर्ग जो है, बुद्धिजीवी वर्ग होता है, हमारी कम्युनिटी के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्योंकि जितना हमारे देश में संख्या है हमारी कम्युनिटी की, उसके हिसाब से
गवर्नमेंट में, राजनीति में कोई इसका रिप्रेजेंटेशन है नहीं अच्छा, तो इसलिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्कार। मैं सौराज अधाना तिगाम से बिलोंग करता हूँ, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे बीच में कुछ एडवोकेट्स ने बाद में ज्वाइन किए हैं। आई वेलकम एडवोकेट खड़क सिंह चौहान जी फ्रॉम कैराना, एडवोकेट दीपक चौधरी जी फ्रॉम सहारनपुर, तुषार चौधरी जी फ्रॉम सहारनपुर, एडवोकेट स्वराज अधाना जी फ्रॉम फरीदाबाद. We welcome you all by heart. Thanks for your presence. मेरा नाम दीपक चौधरी है, सहारनपुर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और इससे पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था वहाँ पे और फादर तहसीलदार थे, रिटायर हो गए और वर्तमान में हमारे जो भाई है एमएलए हैं नकुड़ पिता भाजपा भारतीय जनता। मैं एडवोकेट राज अवतार सिंह, डॉक्टर राज अवतार सिंह। बेसिकली मैं इंजीनियर था और मैंने पीएचडी करी इंजीनियरिंग में आईआईटी रुड़की से और आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट ऑल्सो। तो मैं रहता रुड़की में हूँ, दिल्ली में भी रहता हूँ और ठीक चल रहा है। आई एम एन्जॉइंग दिस प्रैक्टिस, बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों की मदद भी हो रही है इससे और पहले के मुकाबले में अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सभी लोगों से नमस्कार, सभी लोगों से वो है और परिचय हो जाएगा, बहुत अच्छा है। थैंक यू। हमारे आई वेलकम टू खड़क सिंह चौहान जी एंड डेफिनेटली मैं उनके लिए गया था विजयपाल जी के लिए। नहीं, अपना इंट्रोडक्शन कराइए प्लीज। खड़क सिंह चौहान जी प्लीज अपना इंट्रोडक्शन। सभी को नमस्कार। खड़क सिंह चौहान एडवोकेट, और नाम ऐसा परिचय हुई काफ़ी है जो 40 साल वकालत करने के बाद गरीबों की, दुनिया में गरीब अमीर दो ही गरीबों की करी आउटलाइन में, उसके बाद 4 ही साल तक समाज की तरफ चले हैं और समाज को जहाँ भी ज़रूरत पड़े हाजिर हैं। 3-4 बार अध्यक्ष उनसे अलग हो लिए सब पदों से, जहाँ ज़रूरत पड़े हाजिर हैं। रात के 12 बजे भी अवाना जी ने 4 साल तक समाज से जोड़ दिए हैं। हमें समाज में ज़्यादा रुचि नहीं, गरीब में ज़्यादा रुचि रही सारी 40 साल की वकालत में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक और मैं BS चौहान जी जो है उनके क्षेत्र से हूँ और कोरोना में मुझे जब देखा दुनिया ख़त्म ही होगी दिखे, मैंने एक किताब लिखी थी जो पढ़ने का इंटरेस्ट है 1 घंटे के लिए मैं 20 किताबें हर जगह लेके जाऊँ, आज ले लेना। धन्यवाद। थैंक यू।